اگر آپ ایمسٹرڈم یا اس کے گرد و نواح میں ہیں اور آج دوپہر 2 یا 2:30 بجے تک وہاں تشریف لا سکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے۔ اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ آج کی پہلی خبر جو ہے وہ امریکہ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے۔ اہم خبر ہے اور شائع کی ہے ڈراپ سائٹ نے۔ ڈراپ سائٹ ایک ایسا نیوز پیپر ہے، جریدہ ہے، جو پے در پے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی خبریں پبلش کر رہا ہے، وہ بھلے سائفر ہو یا ہتھیاروں کی ڈیلیں ہوں، اور بہت ساری ایسی خبریں وہ حال ہی میں پبلش کر چکا ہے، اور یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کے ملٹری کے اندر بہت ڈیپ روٹڈ ذرائع ہیں جو ان کو یہ تمام خبریں اور ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کی کسی بھی خبر کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا کسی بھی عدالتی سطح پر، حالانکہ انہوں نے سائفر کا متن بھی پبلش کیا۔ حکومت پاکستان نے ایک رسمی قسم کی اس سے ڈینائل دیا، لیکن کسی بھی فورم کے اوپر ان کی خبر کو چیلنج نہیں کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی خبر کو اب سچا ہی سمجھا جائے گا۔ اب وہ ایک اور بم شیل سٹوری لے کر آئے ہیں، اور سٹوری یہ ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صدر ٹرمپ کو افغانستان میں ایک نئی جنگ کے اندر گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر معید پیرزادہ نے تو آپ کے سامنے یہ متعدد بار تجزیہ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری مشین تھی وہ ابھی تک ویسٹرن بلاک جو تھا، امریکہ یا یورپ، ان کو کسی نہ کسی طرح سے مختلف جنگوں میں اپنی خدمات پیش کر کے انگیج رکھتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارا کوآپریشن چلتا رہا۔ ادروائز اگر ہم ان کے اور اپنے جنگوں کے علاوہ آبجیکٹیوز کی بات کریں، وہ آبجیکٹیوز بھلے کلچرل سائڈ پہ ہوں، سوشل سائڈ پہ ہوں، اکنامک سائڈ پہ ہوں، یا خطے میں جو آبجیکٹیو ہیں وہ ہوں، تو کہیں ہم آہنگی نہیں ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی جنگ اس خطے کے اندر رہی، اور ویسٹرن پاورز کو ہماری اس جنگ میں ایدھر جنگ کا ایندھن بننے میں، لڑنے میں، یا ہم نے خود اپنی خدمات پیش کی یا انہیں ریکوائرڈ تھیں، اور ہم ایک ایسی فورس کے طور پر کارآمد رہے جو ویسٹرن ایجنڈا کی کسی نہ کسی طرح سے اس خطے میں تکمیل کرتا رہا۔ اب ڈراپ سائٹ یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ظاہر ہے جب ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو جو اوپر بیٹھے چند 2 4 5 جنرل صاحبان ہوتے ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایک نئی جنگ شروع کی جائے۔ آف کورس وہ نئی جنگ جو ہے وہ کوئی بھی نام لے کے شروع ہو سکتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے خلاف، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی طالبان وہاں گئے ہوئے ہیں، ان پر حملے کرنے کسی بھی طریقے سے، اور جب آپ ان پر حملہ کریں گے افغان طالبان بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے اور ایک لارجر جنگ چھڑ جائے گی۔ ڈراپ سائٹ کا کہنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کیونکہ جنرل عاصم منیر اور دوسرے جو جنرلز ہیں ان کے ساتھ ابھی ان کا جو کوارڈینیشن ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے یا ان لائن نہیں ہے، تو ان کو اپنے ساتھ بہتر کوارڈینیشن میں رکھنے کے جو اس طرف سے ایک پروڈکٹ آفر کی جا رہی ہے، ایک نئی چیز مارکیٹ میں متعارف کروائی جا رہی ہے، وہ ہے ایک نئی افغان وار۔ اب اگر یہ خبر درست ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی جو شروع میں نے آپ کو ابتدائیہ دیا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ ڈراپ سائٹ کی ابھی تک تقریباً تمام سٹوریز جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان نے یا پاکستانی ملٹری نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ اگر ان کی یہ خبر بھی درست ہے تو یہ تو ہمارے لیے پھر بہت ہی ایک خطرناک پاکستانیوں کے لیے خبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم ایک نئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ یا وہاں پر موجود کچھ گروپس کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ریمیفیکیشنز ہمارے لیے کیا ہوں گی۔ پہلے ہی وار اگینسٹ ٹیرر جس کے اندر جو 9/11 کے حملے تھے اس میں ہمارا کوئی شخص انوالو نہیں تھا پاکستانی، اس کے باوجود ہم نے 85,000 شہادتیں دی، 85,000 85,000 لاشیں ہم نے اٹھائیں، تو یہ کہیں دوبارہ ہم اسی سمت جانے کی کوششیں تو نہیں کر رہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے خیبر پختونخوا سے رکھتے ہیں، جہاں سے ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن خبر ملی۔ خبر یہ ہے کہ مانسہرہ حکومت اور اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، شہری کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ خبر ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میرے لیے اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ میرا لیڈر عمران خان جیل میں سے خط لکھ رہا ہے آرمی چیف کو، اور دونوں خطوط کے اندر، پہلے خط میں بھی اور دوسرے خط میں بھی، پیکا ایکٹ کو غیر انسانی، غیر قانونی قرار دے رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک کے جتنے بھی بڑے صحافی ہیں، احمد میر ہوں یا دوسرے صحافی،
وہ रिट पटिशन लेकर गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तीसरी तरफ से हमारी पूरी पार्टी की जो पोजीशन, ज़ाहिर है हमारे लीडर की पोजीशन है तो पूरी पार्टी की पोजीशन है, मतलब कि कौमी असम्बली हो या कहीं भी हो, हम उस पर भरपूर रद्द अमल दे रहे हैं कि पीका एक्ट जो है वो एक गैर कानूनी इकदाम है, ये जो नया लॉ बनाया है, और उसके तहत लोगों की आवाज़ बंदी की जा सके ताकि जनरल आसिम मुनीर साहब या उनका जो भी इस टाइम एजेंडा है वो पूरा किया जा सके। अब अल्लाह की शान देखिए कि जिस सूबे में लोगों ने हमें 2/3 अक्सरियत दी, उस सूबे में एक DPO जो है वो मानसेरा में उसी पीका एक्ट जिसको इमरान खान जो है जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उसी पीका एक्ट को इस्तेमाल करते हुए इदारों और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके शहरी को गिरफ़्तार किया गया है। मैं ज़ाती हैसियत में इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैंने इसको आला लीडरशिप को जो पार्टी की है उनको अपनी ये जो मज़म्मत है और जो मेरी इसके ऊपर आवाज़ है वो पहुँचाई है, और उनसे ज़ाहिर है डिमांड की है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो CMKP अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को देखें, क्योंकि जेल में से इमरान खान वाज़े अंदाज में ये कह चुके हैं कि अगर IG जो मौजूदा लगाया गया है इसने हमारे किसी वर्कर को तंग किया तो फिर इसको फारिग कर दिया जाए। क्योंकि दूसरी खबर जो आज आपके सामने है वो है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी के तबादले का फैसला किया है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसका तबादला कर सकती है तो जाहिर है IG का भी कर सकती है। तो फिर IG को भी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही IG आए हैं, 1 साल पूरा इन दोनों IGs ने निकाला, IG और चीफ सेक्रेटरी ने जो पुराने थे। और बदकिस्मती की बात यह है कि ये दोनों IG और चीफ सेक्रेटरी वही थे जिन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया था, 3 MPOs के अंदर हमारे लोगों को बंद किया था, और इलेक्शन से पहले जो सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें भी यही लोग विराजमान थे। इन लोगों को पहले दिन ही फारिग करना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, 1 साल के बाद हमें ये याद आया, फिर भी दुरुस्त है। लेकिन ये जो मानसेरा में काम हो रहा है ये बहुत ही ख़तरनाक है, और एग्जैक्टली वो हो रहा है जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया कि हमारे अगर किसी वर्कर को तंग किया गया तो उसके ऊपर इस IG को फारिग किया जाए। हाल ही में मैंने आपके सामने नोटिफिकेशंस भी रखे थे जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स ने किए, वो लोअर दीर के DSP अपना DCO हों, या वो शांगला के DPO हों, या और जगहों के बाजोड़ के DCO हों, या और जगहों के जो DPO हों, और महकमा तालीम के और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटीज़ के, उन तमाम ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को हरास करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए वो लेटर्स लिखे थे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर के जो भाई हैं उन्होंने उसका जवाब ये दिया था कि ये लेटर्स के ऊपर शोर शराबा ना किया जाए, ये गैर कानूनी नहीं है। कानूनी तौर पर कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही साथ उन्होंने एक कंट्राडिक्टरी बात की थी और ये की थी कि ये लेटर्स जो है ये वापस ले लिए गए। अगर ये कानूनी थे तो वापस क्यों लिए गए, और अगर वापस लिए गए तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो इन अफसरान को अभी तक OSD क्यों नहीं बनाया गया, ये हम पूछते रहेंगे, इस खबर को हम फॉलो करते रहेंगे। इसी तरह से ये जो मानसेरा में केस रजिस्टर्ड हुआ है इसको भी फॉलो करेंगे और इस पर भी सवाल पूछते रहेंगे। मैंने ये दोनों जो मामलात हैं, जो खतूत लिखने वाला है वो भी आला तरीन हमारा जो फोरम है लीडरशिप का, वहाँ पर मैंने अपनी बात पहुँचाई है कि इन अफसरान को OSD किया जाए। मेरी बात अभी तक नहीं सुनी गई, मेरी बात पर अभी तक मुझे आला तरीन लीडरशिप की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये भी आज मैंने बात उठाई है, देखते हैं इस पर मुझे कोई जवाब मौसूल होता है या आपको होता है या नहीं। होगा तो आपके सामने रखेंगे, नहीं होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो हिंदुस्तान से है, नई दिल्ली से। वहाँ से भी नई दिल्ली के लोगों के लिए कम से कम मैं कहूँगा परेशान कुन खबरें आ रही हैं, और वो ये है कि केजरीवाल, जी हाँ, केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी जिसने 2 इलेक्शंस वहाँ पर जीते हुए थे वो अब दिल्ली को हार गए हैं। जी हाँ, वहाँ पर जो रिजल्ट्स आए हैं, BJP जो भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब की पार्टी है, आपको पता है कि उस पार्टी को ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिपेंडेंट या इंटरनेशनली, ज़ाहिर है उस पार्टी की सपोर्ट तो है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व के वो प्रचारी करते हैं, मीन वो एक्सट्रीम राइट की पॉलिटिक्स करते हैं, एक्सट्रीम मजहबी एलिमेंट भी उसके अंदर है, कौमियत का एलिमेंट भी उसके अंदर है, अक़लियतों को बहुत वो कॉर्नर करके रखते हैं। लेकिन बाहर उनका जादू इस वक्त तो सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन जादू बोलने में वही काम उन्होंने भी वहाँ किया है जो हमारे यहाँ चौधरी निज़ामुद्दीन ने किया है
केजरीवाल को उन्होंने हरवा तो लिया है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी के पास 48 सीट्स आई हैं, 48, और आम आदमी पार्टी के पास एग्जैक्टली आधी सीट्स आई हैं, 24, और कांग्रेस को मिली है सिर्फ एक सीट। शुक्र है शून्य नहीं मिली, एक मिली है कम से कम, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार डिफीट हो रही है, और वजह वहाँ भी फैमिली लिमिटेड कॉरपोरेशन चलाना है, क्योंकि कांग्रेस जो है, जैसे शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने पार्टी पर कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्टी की तबाही की बड़ी वजह वहाँ पर भी गांधी ख़ानदान जो है उनका इस सियासत को छोड़ना नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा राहुल गांधी जो हैं वो थोड़े बहुत रिफ़ाइन हुए हैं, वरना हालात उनके भी बिलावल जरदारी वाले ही थे। अब एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपने आप को, ठीक है उनका वो जो मजहबी एलिमेंट है या उनका एक्सट्रीमिज़म का एलिमेंट है वो है, लेकिन उसके अलावा जो पार्टी के रैंक एंड फाइल में वो नीचे से ग्रास रूट से लोगों को ऊपर लेकर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अभी भी उसी फैमिली लिमिटेड मामले के अंदर फंसी हुई है, और जब आप कैपेबल लीडरशिप को ऊपर नहीं लाएंगे तो फिर यही होगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें ले रही है तो कांग्रेस को कम से कम रीजनेबल सीटें वहाँ लेनी चाहिए थी, डिफीट भी हो। तो इससे मेरी समझ से बाहर है कि राहुल गांधी जो है वो बदतरीन शिकस्त के बावजूद वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन नहीं दे रहे। उनको भी लगता है कि वो भी वसीयत में पार्टी लिखवा के लाए हुए हैं, और जब वो छोटे थे तो उनकी माताजी जो थी सोनिया गांधी, उन्होंने थोड़ी देर पार्टी को सहारा दिया। या ऐसे ही है जैसे दुकान चल रही हो। यहाँ भी आपने देखा था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई तो उसके बाद जरदारी साहब ने पार्टी को थोड़ी देर चलाया बिलावल को देने से पहले, जैसे दुकान और मकान चलाया जाता है, वहाँ भी यही मसाइल हैं। लेकिन अब केजरीवाल का ये भी आपको बता दें कि उनको ऐसे सीधा सीधा नहीं हरवाया गया। वो बड़े पॉपुलर थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम अवामी फलाह के किए थे नई दिल्ली में, और वो ज़रा थोड़ी सी मुतदिल पार्टी हैं, लेकिन उनके ऊपर शराब के ठेके का, टैक्स का, इस तरह के झूठे मुकदमात मोदी ने बनवाए, उनको गिरफ्तार रखा और उनको मुकम्मल कॉर्नर करके क्रैश करके इस इलेक्शन में उतारा गया। ज़ाहिर है इलेक्शन हारना ही था। हाँ, एक गलती उनसे ये भी हुई कि उन्होंने किसी किस्म का अलायंस नहीं किया जो आम आदमी पार्टी थी। अगर वो अलायंस करके इकट्ठे खेलते तो शायद कांग्रेस और वो थोड़ी सी और बेहतर सीटें ले लेते, लेकिन जो अरेंजमेंट किया हुआ था बीजेपी ने, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो कोई वाजे जीत सकते थे या वाजे तौर पर कोई परफॉर्मेंस दे सकते थे। अगली खबर जो है वो आपके सामने नून लीग की रखेंगे। नून लीग ने माँ के ऊपर एक और माँ पैदा कर दी है आपके लिए। अभी तो आपको पता चला था कि मरियम नवाज़ पंजाब की माँ हैं या पाकिस्तान की माँ हैं। अभी एहसन इकबाल साहब ने बताया है कि नून लीग पाकिस्तान की माँ है। उन्होंने ये टाइटल मरियम नवाज़ से छीन के पूरी नून लीग को दे दिया है। अब अभी तक फिर ये नहीं पता कि पाकिस्तान का बाप कौन है, क्योंकि हाल ही में हमें शहरियार अफरीदी साहब ने और फैसल वाडा साहब ने तो इशारा किया था कि आर्मी चीफ बाप हैं। अब एहसन इकबाल साहब ने हमें ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है। उससे आप समझ सकते हैं कि इनके औसान कितने ख़ता हो चुके हैं, मतलब कि इमरान खान इनके जहनों पर किस तरीके से हावी हैं। ज़रा सुनिए एहसन इकबाल क्या कहते हैं। मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की मां है वही बच्चे को तरक्की दे सकती है। बच्चे को हमेशा अमन, सुकून और तरक्की मां की गोद में मिलता है। सुना आपने। तो इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान को इलामा इकबाल का कायद आज़म बनाना है। अब ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, या तो कोई खांसी वांसी का सिरप ना पी रखा हो, मेरे इल्म में नहीं।